मु मधु आपण देखुचंती कलिंग भारत दशबंधु दिन तमाम आमे आपण पाखरे अनेक प्रकार खबर को लेकिन आसुचु किंतु चलंतु वर्तमान चारोटी बड़ बड़ खबर उपर आमे आलोचना करबा जेतेबेले चारोटी बड़ खबर उपर आमे आलोचना करबा प्रथम खबर जो भली भाबे बांग्लादेश रे हिंसा बढ़ी चलीची जुआड़ देखिबो सियाडे आक्रमण करा जाउची भारतीय मानन को टार्गेट करा जाउची जेतेबेले द्वितीय खबर उपर आमे नजर पकाइबा सेतेबेले जीएसटी रे 18% किभली वृद्धि करा जायची जीवन बीमा एवं चिकित्सा बीमा उपर 18% जीएसटी वृद्धि कराइछि से विषय आलोचना करबा। तृतीय खबर ऊपर को जेतेबेले आसीबा मैसूर जो भली भाबे विवाद देखा जाइतला जमी को नेकी एवं जो भली भाबे कर्नाटक रो मुख्यमंत्री को पत्नी मध्य सेठारे जमी शामिल थिला से विषय आलोचना करबा। चतुर्थ खबर ऊपर जेतेबेले नजर पकाइबा सेतेबेले प्रकृतिर तांडव किभली भाबे चलीछि एवं प्रकृतिर तांडव फलरी केतोटी राज्य वर्तमान बन्या घेरर अछि केते लोक मरि गलेनी से सब विषय आलोचना करबा। तेबे गोटे नुह दुईटी नुह तीनोटी नुह चारोटी नुह बरं चारोटी बड़ बड़ खबर को नेकी आमे आपन को करूछु खबरदार। बांग्लादेश रे बढ़ी चली हिंसा जो भली भाबे बांग्लादेश रे हिंसाकांड बढ़ी चली एवं सेठारे हिंदू मानकु वर्तमान टार्गेट करा जाउची। बांग्लादेश रो प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश छाड़ी वर्तमान भारत रे आसी अछंती सेपटे बांग्लादेश रे हिंसा रे हिंदू मानक मंदिर को ध्वंस करा जाइछे संपूर्ण जाली दिया जाइछि जने क्रिकेटर को घर को घर मध्य जाली दिया जाइछि। तबे बांग्लादेश रे एभली हिंसाकांड पछरे आशा करा जाउछि पाकिस्तान हाथ रहिछि कारण बांग्लादेश एवं भारत रो गोटे बंधुतापूर्ण संपर्क रही जहाँ फल पाकिस्तान बांग्लादेश रे अशांति सृष्टि करी भारत को विपदग्रस्त कराइबा पई चिंता मनाउछि बोली आलोचना करा जाउछि। सेपटे बांग्लादेश रो स्थिति को समीक्षा करिबा पई भारत रो सर्वदलीय गोटे बैठक आयोजित होइतला जोथरे कि उभय सपक्ष दल एवं विपक्ष दलर नेता माने शामिल थिले एवं बांग्लादेश रे एभली हिंसाकांड पछरे रहिछि कोन कारण निर्दिष्ट कारण दर्शाइबा पई बैठक बसितला। सेपटे जो भारतीय माने सेठारे रहिचंती सेमानकु स्वदेश प्रत्यावर्तन करबा पई मध्य चिंता करा जाउछि। Still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes.
है जो बैठक हुई है कल सीसीएस की, क्योंकि जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। और एज अ सिचुएशन इवॉल्व्स उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की स्थिरता आएगी, क्योंकि ये अस्थिरता पूरे साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है और खास करके भारत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। Government of India has to clear the position regarding the Bangladesh issue. It was one of the closest ally of India, the neighboring country. But unfortunate incidents have happened. We are not aware of the full situation, what is prevailing in the Bangladesh. So let the government comes out with an open statement regarding the political situation prevailing in Bangladesh. And further, it is with great concern we are looking into affairs, because the closest neighboring country like Bangladesh having some disturbances definitely will affect our country also. So we are having grave concern on this issue. Let the government comes out with a clear statement regarding this issue. बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है वो खतरनाक लोग हैं। सर, इस पे ऑपोजिशन द्वारा भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष के सवाल बेमतलब बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान इनसे भिन्न है। See, what is happening in Bangladesh is a very sensitive issue, and our country should make sure that whatever decision they take it very carefully, because what is happening there in Bangladesh is dangerous to democracy, and it can have repercussion across the neighboring countries. I believe the all-party meeting has happened this morning. Certain decisions are taken, and I hope those decisions are favorable to our country, because we have foreign policies to look at too. There's another aspect of this whole issue is Indians in Bangladesh, especially students. The central government should make sure that those students, those citizens of our country who are in Bangladesh, come back to India safely. This is very important. So whatever decision they take, whatever policy they want to follow, has to be done very sensitively and make sure that it does not affect any part of our country or anybody in our country. Social media is a big factor in country and other countries as well. So what message you will give to the youth who believe easily on social media's rumors? See, social media has been talking since yesterday a lot about this whole Bangladesh issue. But people need to understand, all those who use social media, any form, must understand that they should follow only authentic sources, authentic news. If they follow just about anybody, it can create misunderstandings and it can lead to problems. So, request to everybody in this sensitive time to follow only authentic social media news or authentic social media sources. But other side, BJP leader Ram Kadam are doing politics in this issue. He early said to ANI that why Uddhav Thackeray was silent on this matter, as Hindu genocides are getting in Bangladesh. So what your state on this? See, Ram Kadam is known to make this kind of statements that don't make any sense. He likes to stir the pot, create issues. But at this time, when this issue is so sensitive, I think he should keep quiet and not talk this kind of issues. Yes, he can say things that will be of national interest, yes, but to create these kind of statements. आपण माने सुनुतले वर्तमान बांग्लादेश रे केउ भली भाबे हिंसा को नै के वर्तमान राजनीति चलीची सपटे केउ नेता मानकर कोन प्रतिक्रिया रहितला अनेक दाबी करूचंती कि सेठारु भारतीय लोक माननकु फेरा जाऊ कारण भारतीय को बा हिंदू माननको घरे बसी आक्रमण मध्य आरंभ होई जैतला। तबे खबरदार द्वितीय खबर ऊपर चलंतु नजर पकाइबा।
जदि आम देखा आमर जीवन बीमा बा औषध पत्र एवं लाइफ इंश्योरेंस उपरे 18% जीएसटी को वृद्धि करा जायछि। प्रधानमंत्री बा केंद्र सरकार अधीन रे जीएसटी को बढ़ा जायछि। तो यहाँ को लेकिन अनेक नेता मानकर प्रतिक्रिया सामना को आसी जो भली भाबे महुआ मैत्रा से तांको प्रतिक्रिया रखिथिले कि जो भली भाबे जीएसटी 18% को वृद्धि करा जायछि गोटे साधारण लोक जे हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था अच्छी तापई औषध निहाती आवश्यक। जदि से औषध 18% जीएसटी दब तेबे जदि तार सक्षम सेतिकी नथिबो तेबे से निरीह जीवनटी चली जीवो। तेबे सरकार थरे से गरीब लोक बा जो लोक माने हॉस्पिटल चिकित्सा अवस्था अच्छी से केते कष्ट थाए से हॉस्पिटल बा मेडिकल खर्च उठाया ता बाद मेडिसिन पाई मध्य तांकू अधिक टंका देबाकू पड़िबो। तेबे यहाँ को नेकी केउठी ना केउठी गरीब लोक माने अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबे, मध्यवित्त परिवार लोक माने असुविधार सम्मुखीन हेबे। तेबे केंद्र सरकार कर निष्पत्ति को नेकी आमे आदौ खुशी नहु। मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। मैम, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग जीवन बीमा कराते हैं या मेडिक्लेम का भी अब यह है कि मेडिक्लेम भी लोग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने हद तक लोग प्रभावित होंगे? अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीजों में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं। ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। आप देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने % चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। सरकार है जो कफन टैक्स लगाती है। अब एक आदमी बीमार, एक्सीडेंट हुआ है, वो जीवन से संघर्ष। Our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, chairperson of the All India Trinamool Congress, was the first person to raise a voice on this issue and has written to the Finance Minister saying that 18% GST, which has been levied on premiums, on the premium for health insurance and the premium for life insurance, this is a very anti-poor people tax, because this you are basically guaranteeing against life's uncertainties. You're guaranteeing against death by life insurance. You're guaranteeing against accident, against illness, against injury with health insurance. So with 18% GST, remember that just GST is being paid by the richest person and being paid by the poorest person, being paid by the middle class. So this is actually a deterrent for people to take out a new policy or to continue with an existing policy. So it makes them very vulnerable, and this is completely anti-people, and we would request the Honorable Finance Minister to remove this GST. देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने, यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है, और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी।
राज्य रे 18% जीएसटी वृद्धि को लेकिन क्यों भली भावे राजनैतिक माहौल गरम अच्छी सरगरम अच्छी से विषय देखुले कि 18% जीएसटी वृद्धि पाइले मध्यवित्त परिवार क्यों असुविधार सम्मुखीन हेबे समाने हॉस्पिटल जतबेले हॉस्पिटल जाउचंती चिकित्सा हेबा पई सेठारे तांकु जतबेले मेडिसिन चार्ज हॉस्पिटल चार्ज सहित सामान हो जिवो सेमानकर जीवन मध्य चली जिबार संभावना अछि तबे याकु नेकी अनेक विरोधी दलर नेता माने मध्य विरोध करिसंत तबे खबरदार तृतीय खबर उपरे चलंतु नजर पकाइबा कर्नाटक रे मुद्दा प्रसंग को लेकिन वर्तमान भी थम्युनी बा वर्तमान तार विवाद थमिनी तबे विवाद को लेकिन राजरास्ता को ओल्लाइचंती समस्त विरोधी दल तबे कर्नाटक रे मुद्दा प्रसंग मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भली भाबे सेठारे वर्तमान कांग्रेस सरकार को शासन चली सिद्धरामैया शासन चली जेतेबेले मैसूर जो जमी थिला जो लोकमानंकर जमी थिला सेटा प्रशासन तरफ रु निया जाइतिला कि सेठारे कोनोसी प्रकल्प तयारी करा जिवो से प्रकल्प पई समानंकुटु जमी निया जाइतिला एदिरे कर्नाटक मुख्यमंत्री को पत्नींकर मध्य जमी शामिल थिला किंतु परवर्ती समय रे सेठारे कोनोसी प्रकल्प न करा जाई ताकू अधिक टंका रे बिक्री करा जाइतिला तबे लंबा समय धरी कर्नाटक रे ही विवाद ही स्कैम लागि रहितिला अनेक दलर नेता माने यहाँ कांग्रेस सरकार को ऊपर दोष न दुचंती किंतु कांग्रेस सरकार वर्तमान कर्नाटक सरकार दाबी करूचंती कि यहाँ बीजेपी सरकार समय रु चली आसुची तबे सपक्ष विरोधी दल नाम रे एवं विरोधी दल सपक्ष दल नाम रे प्रतिक्रिया रखुचंती तेबे जो बड़ी भाबे मुद्दा प्रसंग को नेकी मुद्दा स्कैम को नेकी एते सब आलोचना होउतला परवर्ती समय रे विरोधी दलर नेता माने वर्तमान राजरास्ता को ओलाइचंती एवं मुद्दा चलो प्रसंग बा नारा देबा आरंभ करिचंती भ्रष्टाचार से डूबे है हर पोजीशन को रेट फिक्स किया है रेट दिए तो आपको जगह मिलेगा नहीं है तो नहीं मिलेगा मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन आवर कंट्री कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट स्वयं सीएम उसका लीडरशिप कर रहा है करप्शन का लीडरशिप सीएम का पैसा जाता है कांग्रेस पार्टी को एटीएम के जैसे कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का एटीएम है यहाँ लूटता है पैसा बांटता है सेंट्रल कांग्रेस पार्टी को पैसा बांटता है By the government is covered up by this? See, they are trying to cover up their inefficiency. They are trying to cover up what the central government, the injustice meted out by central government for Karnataka. This is nothing, this Padayatra is nothing but a launch pad or a deemed launch pad for Vijayendra and Nikhil Kumaraswamy. You attacked severely against SD Kumaraswamy. Tell me one fact. Tell me one thing that is not a fact. Tell me one thing that was fabricated. Tell me one thing that was a misinformation, disinformation or a fake news. It is facts. It was the BJP MLAs and the JDS MLAs were speaking about it, not us. So you are conveying through this program? Absolutely. The people of Karnataka have every right to know the duplicity of BJP and JDS. Very good response. The ground support is swelling. People want this corrupt chief minister to leave his office, quit his office, resign from his office for the corruption what he has done in the state of Karnataka. People want accountability and his resignation from the post of chief minister. See, time and again we have produced all the documents technically on the floor of the house as well as in the governor. Everywhere we have impressed upon this issue. Now to bring more into public domain, public space, among public, we have organized the Mysore Chalo Padayatra to insist, to sensitize, to make Congress party realize their mistake. They can't get away with the corruption. They should be held accountable. We want their resignation. If Congress party has got any respect for constitution, any respect for democracy, any respect for accountability, they should take immediately their chief minister's resignation. Is doing Padayatra. Other side they are doing the Paschatapa Padayatra. No, they are doing Paschatapa Yatra, not Padayatra, because they are the one who has started corruption in Karnataka. Are you trying to convey through this program? Yeah, we are trying to bring awareness among the people that what they are doing is only trying to cover up their deeds. Demanding the CMs and DCMs resignation.
You see, because they are feeling out of water, they are feeling as water feels, fish feel out of water. We have all started this Padayatra regarding the Muda scam and the corruption which has taken place in Valmiki for the developmental works. What the amount around 187 crores has been misutilized and misused. Chief Minister himself has accepted in the floor that 89 crores has been misutilized and misused. So regarding this, we have started our Padayatra and it has been almost 3 days now. We are entering 4th day. Today we have reached Nidgatta and Saturday we will be ending the Padayatra, having a big rally and a big Samavesha in Mysore. See, Congress is basically just trying to divert the issue because they know, the whole of the state knows that today the Muda scam and the Valmiki corruption which has taken place, they cannot get out from this. So they just want to divert this issue and divert the people of state. But people of our Karnataka are very intelligent, they are very educated, they know what is happening. DK Shivkumar says Kumaraswamy is a blackmailer. See, personally, I am telling you, brother, politically, whatever the issue is, everybody, we have the rights to talk. But personally, if you go, people of our state, or nobody is going to appreciate this. तेज चलतु खबरदार चतुर्थ खबर उपर नजर पकाइबा प्रकृतिर तांडव केरल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रे वर्तमान भी जारी रही उद्धार कार्य जो भाव केरल वायनाड रे 350 रु अधिक मृत्यु संख्या छुईथिबा बेले वर्तमान भी अनेक लोक हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था अच्छे सेपटे हिमाचल प्रदेश रे बन्या एवं भूस्खलन फल अनेक लोक सेठारे वर्तमान अस्थायी कैंप बा हॉस्पिटल से हॉस्पिटल रे अछंती एवं अनेक श्रद्धालु जो माने काउरिया यात्रा पई केदारनाथ अमरधाम यात्रा करथिले सेमाने मध्य फसी रहिचंती तेबे प्रकृतिर तांडव परे संपूर्ण ध्वंस विध्वंस हो जाइछि विभिन्न राज्य केरलर वायनाड र स्थिति संपूर्ण उल्टी जाइछि गोटे प्रकृति घेर रे थिबा गोटे सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण थिबा केरलर वायनाड र चित्र संपूर्ण अलग सेपटे हिमाचल प्रदेश रे जो भली भूस्खलन होइतला गोटे घर किभली भुसुड़ी पड़ितला से चित्र आपण माने देखिथिबे तबे सेपटे उत्तराखंड रे मध्य जो भली भाबे लगाण वर्षा जारी रहितला केदारनाथ अमरनाथ यात्रा रे जो श्रद्धालु माने जाइतिले सेमाने मध्य दीर्घ दिन धरी फसी रहिचंती. The rescue and search operations for the dead bodies are getting into the last phase now. The land area is almost now covered, except the slushy regions where we have more mud, around 50 to 100 meters of mud. Those areas only we can venture if it becomes dry. So today we are concentrating on the village office area, where yesterday we got some bodies, and we will be more concentrated on that area and the land part today. Now what we have decided is that last 7 days parallelly the Malappuram police, the local volunteers, the SOG and NDRF has been searching this riverside also. But what we found was that some of the areas are inaccessible, and some of the twice the local rescue workers got stranded and we had to move in and rescue them. So what we have decided is today we are trying to, yesterday we got a body from the Shandambara site. So what we are doing is that we are going to do the 6 kilometer stretch from the waterfalls to the downstream 6 area where bodies were found in inaccessible areas. So we have selected 12 persons, 2 are forest guides, 4 are from the Special Operations Group of Kerala, the commandos of Kerala Police, 6 are the Army commandos. So we have divided 2 sorties, the police, forest and the Army commandos. And the sorties will go to those areas, we will airdrop the commandos on those locations. They will go. देखिए जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है. लगभग 29 स्थानों पर छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है. 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है. कटाव बहुत हुआ है. बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं. लेकिन सभी लोगों ने मिलकर
यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं श्री सौरभ जी, और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग, जिलाध्यक्ष जी समेत सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट होकर, और मैं तो सभी से कहूँगा कि ये चूँकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25%। देखिए, जो राज्य सरकार की जो हालत है वो तो सबको पता ही है कि राज्य सरकार की क्या हालत है। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कि मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है, तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे, ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारे को राशि मिलती है वही नहीं दिया। बार आरोप ये लगा। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान चारोटी बड़ बड़ खबर उपरे आमे नजर पकाउतले। खबरदार जेतेबेले प्रथम खबर उपरे आसीतिले सेतेबेले बांग्लादेश रे किभଳି हिंसा बढ़िबारे चलीची, हिंदू मानक मंदिर ठु आरंभ करी हिंदू मानक घर पर्यंत आक्रमण आरंभ हो गलानी। जेतेबेले खबरदार द्वितीय खबर उपरे आमे आलोचना करथिले सेतेबेले 18% जीएसटी को नेकी वर्तमान राजनेता मानकर कोन प्रतिक्रिया थिले से विषय आलोचना करथिले। खबरदार तृतीय खबर उपरे जेतेबेले आमे आलोचना करूथिले सेतेबेले मैसूर रे मुडा को नेकी केउंभଳି भाबे राजनीति चलीची, राजरास्ता को वर्तमान विरोधी दलर नेता माने आसीचंती से विषय आलोचना करथिले। एवं खबरदार 4 नंबर खबर शेष खबर उपरे आमे जेतेबेले आलोचना करथिले प्रकृति तांडव फल केरल एवं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रे केउंभଳି बन्या परिस्थिति, अनेक लोक फसी अछंती, अनेक हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था अछंती से विषय आलोचना करथिले। किंतु वर्तमान समय गोटे छोट ब्रेक पर कुआडे जानतु नहीं, देखुतांतु कलिंग भारत।